Free Hit 2020। हमें सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है फ्री हिट 2020 में एंड व्हाट हैज बीन द फर्स्ट गेम टुडे इन एशिया कप एंड वी आर लुकिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑब्वियसly the first encounter in this entire tournament. Well, Pakistan being put to bat first, putting a total score of 147 on board, India requiring 148 to win. I'm joined over here by my co-host Adesh Kumar Gupta and along with him we have over here V Krishnaswamy and Venkat Sundaram. जी, सबका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और वेंकट आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या इन्होंने जिस तरह से आपस में मिलकर 9 विकेट बांटे, क्या कहेंगे? I think the bowling was very accurate and bowled well. Actually, they bowled well. But 147 on this pitch where the ball is doing a little bit, the fast bowlers are getting some movement, is a good score. And Indian batting will have to look for a good start and the top three will have to click. Swami, अगर हम देखें 18th over में it was 114 for 7 when we started the 18th over precisely and then इन्होंने 147 बना लिया despite the good spell that Bhuvaneshwar Kumar put up 4 for 26. Your take on conceding all the runs we conceded in the last 3 overs? See, I mean, not just last 3 overs, but even the last wicket, putting on almost 20 runs, There were, I think, 128, I think, Yes, when the 8th and the 128, 9th yeah. wicket fell down and there was a chance for a hat-trick. So I suppose that last bit, that last hurrah, as they call it, can be useful for Pakistan, could be a little embarrassing for India if things are sticky. But I still think India has enough firepower in our batting, to take on this, kind of target of 148. So I would say, but again, it's always food for thought, when you have, say, the last 2 overs, of course, the last 2 overs are always usually quite expensive. You gave Arshdeep a chance to bowl the death over the last one. And some runs were given, but I suppose it's all a question of experience. This is something what I'm sure Rohit also had in mind when he gave the ball to Arshdeep. और वेंकट बॉलिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन आपको लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं फील्डिंग में काफ़ी कुछ कमियां नज़र आई? नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज फील्डिंग भी अच्छा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये प्रेशर गेम है, इसमें तो आपको डाइव दिखेगा, कभी बॉल इधर, कैसे कोई एक कैच वो आप सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया लास्ट ओवर में, लेकिन इसके अलावा फील्डिंग अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि ये हमारा फील्डिंग और जो इवन कैप्टनसी वाज गुड, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए थे, स्पिनर्स को लाए एंड स्पिनर्स आल्सो बोल्ड वेल, दे वर ट्राइंग टू गेट विकेट्स। इस पिच पे ज़्यादा स्पिनर्स के लिए कुछ खास है नहीं, मीडियम पेसर्स के लिए है, बाउंस भी है, 2-3 बैट्समैन शॉर्ट पिच बॉलिंग पे आउट हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इवन पाकिस्तान हैज गॉट गुड फास्ट बॉलर्स, तो ये मैच अच्छा रहेगा। Yes, and one other thing, Swami, भुवनेश्वर कुमार का तो स्पेल बहुत खूबसूरत रहा 4 for 26 अगर हम बात करें, बट हार्दिक पांड्या, another bowler who just pulled the right strings for us at the right time, and you were also mentioning that he might come out to be the main player for us today, आज वो चीज़ वेंकट भी बोल रहे थे, 4 overs में 3 wickets, 25 रन, economy of 6.25 T20 के अंदर. What is your take on that? Sometimes it's not just the wickets, but also the quality of wickets and the quality of batsmen that you've dismissed. Rizwan at that point of time, when Pandya got him, caught by Avish, I think what is a very, very crucial wicket. And, at that time when they were cruising at something like almost pretty much close to 100 for 3, and it was just 14 overs. And usually what they say, like in a 50-over match, the score that you have at 30 overs, it usually gets doubled by the end of 50. So similarly in T20, what you have at about, say, 14 overs, even if it's not doubled, it can get to at least, say, another, sizable number. If Rizwan had continued, he could have well seen it go beyond 160, 170. He had his eye in. He is a good hitter of the ball. He's an excellent batsman. So I think that wicket was extremely crucial. That he also got Iftikhar and Kushti Shah also was an added bonus. And anyway, Hardik Pandya on any given day is an excellent all-rounder to have in your playing 11. और विकेट कितना अच्छा लगा, जबकि सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक मैदान में थे, लेकिन उन्होंने कमाल की विकेट कीपिंग की और अपनी हाइट से ज़्यादा
कैच पकड़े उन्होंने और 3 बेहतरीन शिकार किए विकेट के पीछे। आप ये भी देखिए कि एक 4 भी हो सकता था, एक उनके ग्लव पे लग के चली गई, थोड़ा दूर था, लेकिन आप ये देखिए उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि वो खेल रहे हैं और ऋषभ बाहर बैठे हैं, तो ये तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आराम से, लेकिन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ यार। उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, उन्होंने बहुत अच्छी कीपिंग करी आज। और मैं समझता हूँ अब देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि अब जानते हैं कि मैंने परफॉर्म कर दिया बिहाइंड द विकेट्स, अब मैं जाके 20 रन भी बना लूँ और मैच जितवा दूँ, तो लेकिन वो छठे नंबर पर आते हैं, अगर वो ऐसा हुआ तो स्वामी कई बार कहते हैं ड्रेसिंग रूम में, अगर 7वें 8वें नंबर तक बैट्समैन जाए तो फिर इसका मतलब टीम में मुश्किलें हैं, क्यों स्वामी? बिल्कुल। आपके 8वें नंबर तक या 9वें या 10वें तक आ जाएं और मेरे जैसे विशेषज्ञ जो मतलब कि कुर्सी पे बैठ के बहुत सारी बातें कहते रहते हैं मैदान में जाए बिना, और वो कहें कि अगर आखिर के 2 ओवर में 12 रन और 13 रन पड़ गए, 20-22 रन पड़ गए, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डेस्परेशन भी था। जिस तरीके से जो अंतिम बल्लेबाजों ने जो है आड़े तिरछे मारा, 6 सिक्सेस भी पड़े लास्ट के 2 ओवर में 1-1, तो आई थिंक वो डेस्परेशन भी था। बट सडनली अगर स्कोर जो है 125 130 के बीच में से और 148 पहुंच जाए या 147 पहुंच जाए, वो 20 रन जो होते हैं आखिरी के, वो कई बारी T20 में महंगे पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज महंगे पड़ेंगे, मुझे लगता है कि भारत की बल्लेबाजी इतनी काफ़ी मजबूत है कि 148 का जो लक्ष्य है वो उसको आराम से पहुंच जाएंगे वहाँ तक। बट इस तरीके से 20 रन आखिर में देना थोड़ा सा मतलब कि दर्द जरूर। लेकिन स्वामी एक बात तो आप मानेंगे कि जब भारत के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच कछुए की गति से चल रहा है, लेकिन थोड़ा रोमांच जरूर आया, क्यों वेंकट? नहीं, ऐसा रोहित शर्मा को रोमांच नहीं आया। करेक्ट। लेकिन अगर देखें एक चीज वेंकट आपसे, आई कम टू आस्क यू कि 148 ऑन बोर्ड फॉर अस टू विन, 147 बने हैं ऑफ कोर्स, तो ये टारगेट काफी चेजेबल है ऑन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं इस पिच के ऊपर। एनी स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है भारतीयों को लेकर उतरनी चाहिए व्हेन दे आर चेजिंग अ टारगेट लाइक 148 टू विन? कि ऐसा है कि फर्स्ट 6 ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और बैट्समैन सोचता है कि मैं मारूंगा, लेकिन उनका फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। पाकिस्तान हैज ऑलवेज हैड गुड फास्ट बॉलर्स एंड यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट देम। इफ दे टेक 2-3 विकेट्स एट द टॉप, दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडियन टीम, एंड द टॉप 3 in Indian team are shaky. So they have to play very carefully, and at the same time they have to play aggressively because they have to dominate the bowling. और स्वामी रोहित शर्मा और केएल राहुल, जैसा कि इशारा किया वेंकट ने, और विराट कोहली, ये 3 ऐसी कड़ी। विराट कोहली लंबे समय से ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे, रन बना रहे हैं। केएल राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई बड़ी पारियां नहीं खेली और रोहित शर्मा लंबे समय बाद टीम पर हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि कुछ फ़ायदा उठाया जाए? बिल्कुल। जिस प्रकार से भारत के गेंदबाजों ने जो है शुरू में बाबर आजम को काफ़ी तंग किया और उनको जो है एक छोटे से स्कोर पर आउट भी कर दिया, तो वही जो है कि कोशिश रही कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की भी, उनके पास भी कुछ नए गेंदबाज हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये बहुत ही आसान होगा 148 का लक्ष्य मगर भारत इसके पक्ष में, भारत अभी भी पलड़ा जो है हल्का सा भारत के पक्ष में भारी है। Right, and for all our listeners who are tuning in, the biggest update that we're bringing today is कि इंडिया पाकिस्तान के इस मुकाबले में पाकिस्तान को जिनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतारा गया, they put a score of 147 on board. India looking to make 148 to win. Thank you so much, Swami. Thank